So good morning, students. Welcome to once again this political science class. As you know, the chapter is 5 legislature. Legislature. In our previous class, we already discussed about some important topics like. But first of all, you have to understand what is called a legislature. As you know, I told you that legislature is a comprised in a form. It is called in India a parliament where the parliament in many countries there are two houses are there. Some are in any country is also there. Some are there. Many countries that only have one house. So we are talking about India's legislature. Legislature. What do you mean by legislature? As we know that legislature Vyavasthapika. In a very simple meaning or in a very simple language, we say कि व्यवस्थापिका वो है जो कानून बनाती है, ठीक है? But in spite of this, of law making very important functions, we all know. But there are some other functions that is performed by legislature. These are the functions which are just keep control on the executive, like the financial part, like the executive part, like the amendment in the constitution. There are so many functions which are performed by the parliament. So in this way, we come to know that this legislature is very important organ of the government for the smooth running of the functions of the government, functions of the country. So first of all, we understand in other languages, it is in a Greek language, it is called a group of people who vote for new laws. The legislature here means a group of people who vote for new laws. Whatever the new laws are framed, whatever the any issues are that in faces by our country, this is totally debated in parliament, and the final whatever the bill or law is formed, it is only in legislature or in parliament. Now the question arises here, why do we need parliament? अगर हमें लेजिस्लेचर समझ में आ गया कि व्यवस्थापिका क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान है कि पार्लियामेंट क्यों जरूरी है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. जस्ट इमेजिन अ कंडीशन, जैसे क्लास 10 में हमने पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ा था ना, उसमें हमने कहा था ये जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन दैट द पॉलिटिकल पार्टीज इन एनी नेशन पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट एग्जिस्टिंग. तो हमने क्या आंसर दिया था कि अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो उस कंट्री में इंडिविजुअल लोग जो होंगे वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे. कौन लोगों की जिम्मेदारी उठाएगा, विल बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पीपल. कौन पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाएगा. तो कुल मिला के हमें ये समझ में आया कि पॉलिटिकल पार्टीज के बिना भी हम किसी भी देश में एक गवर्नमेंट की इमेजिनेशन नहीं कर सकते. एक ऐसा गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो लोगों के लिए अकाउंटेबल है, लेजिटिमेट है, हर तक उस ऐसी गवर्नमेंट की हम जो है इमेजिनेशन नहीं कर सकते. सेम थिंग इज हियर पार्लियामेंट. देखो हर किसी की इम्पोर्टेंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, इवन अ पर्सन, उसकी इम्पोर्टेंस किस पे डिपेंड करती है, द फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय दैट इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और एज वेल एज बाय अ पर्सन. तो सबसे बड़ी बात यही है. तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, जो इस हिसाब से जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हमने कहा लॉ मेकिंग बॉडी है. तो लॉ मेकिंग बॉडी है मीन्स हमारी कंट्री को गवर्न कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है. लेकिन लॉ कौन बना रहा है, लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बना रही है. एंड हु आर द मेंबर्स ऑफ दीज लेजिस्लेचर, दोज आर कॉल्ड द लेजिस्लेटर्स. So in this way, these legislatures, they form the laws. Not only this, they also like the workouts, demonstrations are there. Sometimes the questions are also there. So many, these are the part of the parliament. जो कि हम डे टू डे कभी भी राज्यसभा लोकसभा की मीटिंग्स होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, तो उनमें सब चीजें आपको देखने को मिलेगी. तो समटाइम इट फील कि जो पार्लियामेंट है इट जस्ट रिड्यूसिंग इट्स इम्पोर्टेंस इन nowadays because of the single majority government. It is not true. कई बार ऐसा लगता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स कोई बिल लेकर आते हैं या कुछ भी वो नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू द विल एंड विशेस ऑफ दोज कैबिनेट मिनिस्टर. इट इज नॉट ट्रू. क्योंकि कोई भी चीज पार्लियामेंट में होती है. देखो देश जो है वो कहा जाए कि देश की एक व्यवस्था जो एक सिस्टम है, वो एक सिस्टम एक लॉ के अकॉर्डिंग चलता है. और हमने जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सारी पावर दे दी और कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी पावर गवर्नमेंट को दे दी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को दे दी है,
उसके अकॉर्डिंग ही देश चलेगा, ना कि किसी की विंस पर, ना कि किसी की विशेष पर या उनकी डिजायर या सेल्फ इंटरेस्ट पर चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। इसलिए हमें जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को समझना जरूरी है, तभी हमें प्रैक्टिकल चीजें समझ आएंगी। जहां हमें पार्लियामेंट की इम्पोर्टेंस क्लियर होगी, हमें मालूम है कि कोई पार्टी उसमें मेजोरिटी, उसकी नजर में उसके पास मेजोरिटी है, लेकिन जब तक वो पार्लियामेंट में प्रूव नहीं कर देती है कि दैट पार्टी अटेन्स द मेजोरिटी इन द इलेक्शन, तब तक वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती, तब तक प्रेसिडेंट उसको कॉल नहीं करेगा। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से ज्यादा पावरफुल हो रही है? नहीं, बिकॉज जो लेजिस्लेचर है वो, अगर मैंने पहले भी आपको बताया था, लेजिस्लेचर इज दैट प्लेटफॉर्म कि जहां सबसे ज्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। राज्यसभा डिफरेंट रीजन, डिफरेंट स्टेट मेंबर्स हैं, लोकसभा दैट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। So in this way we say that it is the biggest form where the public representation is possible. तो कैसे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की इम्पोर्टेंस हम नहीं? Parliament is very, very important, and executive is also, that's why answerable towards the legislature, and legislature is also that answerable to the executive. This is the I told you कि हमारे जो इंडिया में सिस्टम है, जहां पर जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, बाकी एग्जीक्यूटिव और ये एक दूसरे को सेकंड, जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे पे कंट्रोल करता है, तो ये इसीलिए इसको सेकंड बैलेंस कहा था हमने, इक्वल लेवल पर। अब हमारे सामने जो आज का क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, what are the two houses of parliament? As we everybody know that two houses of parliament is Lok Sabha and Rajya Sabha. So these are called the bicamerals. And now the question arises here, why in India it requires the two houses of parliament? क्या एक हाउस में काम नहीं चल रहा था कि दो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही इन टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का जो है उसमें लिखा गया, and that is followed, still it is followed up when the constitution was written, still it is followed by all the government. हर हमारे देश की हर गवर्नमेंट में जब भी आई, लेकिन जो व्यवस्था, जो सिस्टम चला रहा है वो कभी नहीं बदला, वो वैसा का वैसा ही है। अब हमारे सामने बात ये है कि हमें ये पता चल गया कि लोकसभा और राज्यसभा, एज वी नो लोकसभा क्या है, हाउस ऑफ द पीपल, और राज्यसभा क्या है, काउंसिल ऑफ द स्टेट। हाउस ऑफ द पीपल मीन्स the people, means the members. Why it is called the house of the people? Because the members of the Lok Sabha, these are directly elected by the people according to the right to vote. This is very simple. Now on the other hand, councils of state, what do you mean by that? कि हर स्टेट जो है अपने मेंबर्स को राज्यसभा में भेजता है। अब ये मेंबर्स कौन है? एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो जिन एमएलए को हम चुनते हैं, जिन्हें हम विधायक कहते हैं, ये इलेक्टोरल कॉलेज चलाता है, जो कि राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करता है। तो ये जो राज्यसभा है, इसके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, इसलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया है, और लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड है, इसलिए हाउस ऑफ द पीपल। आई थिंक इट इज क्लियर। जहां तक ये चीजें हमने रिकैपिटलाइज की, वो चीजें क्लियर हो गई। आज का टॉपिक हमारा ये है कि हमें दो हाउसेस की क्यों रिक्वायरमेंट है इंडिया में। व्हाई वी रिक्वायर टू हाउसेस इन इंडिया? एज यू नो दैट इंडिया इज अ large country, 7th largest country, populated, 2nd most populated country, diverse country, society is very large, geographical regions are very diverse, different cultural people are there, some are very, you can take it, tribal people are also there. So we see that this diversity that is in, it is found in India. So we believe in equality. One thing is that we believe in equality. If we believe in equality, that is very necessary that equal to the, according to the population, the members of these houses should be also in proportion of those population, the members should be also
in both Rajya Sabha and Lok Sabha. For the accommodation to the this diversity, यानी सोसाइटी के हर सेक्शन को, चाहे वो जियोग्राफिकली है, चाहे वो कल्चरल बेस्ड पे है, चाहे हमने कहा जैसे हमने रिजर्वेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है अकॉर्डिंग टू द 3 लिस्ट, उसके हिसाब से, है ना, इंडिया को जो है, आपको मालूम है इलेक्शन का क्या तरीका है, इलेक्शन का सिस्टम इंडिया में क्या है कि हम जब भी इलेक्शन होता है तो पूरी कंट्री को जियोग्राफिकली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, ठीक है। उस पॉपुलेशन के हिसाब से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव का चुना जाना निश्चित है। अब वो जो रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट जो चुना जाता है वो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होता है, डिपेंड करता है उसका इलेक्शन कैसे हुआ। तो हमारे सामने ये बिल्कुल क्लियर चीज है। अब सेकेंड थिंग है कि हमारे यहाँ बाइकैमरल आने का केवल एक ही रीजन है, बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल डिवीजन, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी इज देयर। और सबसे बड़ी बात ये है, ये एक रीजन हुआ जहां पर हमने एकोमोडेशन दी डाइवर्सिटी को, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द मेंबर्स को हमने एक अपॉर्चुनिटी दी, इक्वालिटी दी कि वो इस हाउस के मेंबर बने। सेकेंड थिंग, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट यही है कि जहां पर बायकैमरल लेजिस्लेचर है उससे बेनिफिट ये होता है, आपको मालूम है कि कोई भी इंडिया के अंदर क्या सिस्टम है, कोई भी जो प्रोसेस होता है बिल के पासिंग का प्रोसेस, आई नो दैट इन योर अर्लियर क्लासेस यू ऑलरेडी रेड ऑल दीज प्रोसेसेस। क्या ये प्रोसेस है? और ना केवल इसमें बल्कि हमने जब से स्टार्ट किए हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ना, हमने सारी चीजों को समझ लिया है कि मेजोरिटी मेंबर्स क्या होते हैं, वोटिंग मेंबर्स कितने होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर की है। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है कि कोई भी बिल अगर पास होता है तो दोनों हाउसेस में जाता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस, कहीं पर भी उस हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, और वहां से पास होने के बाद वो बिल कहाँ जाएगा? अगर लोकसभा में है तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में है तो लोकसभा में जाएगा। तो दोनों का कंसिडरेशन हो जाता है। एक तरफ से उसमें जो बिल पास हुआ, दूसरी तरफ रिकंसिडरेशन हुआ, तो ट्वाइस टाइम जो है उसके ऊपर चीज को, बिल को क्लॉज बाय क्लॉज, देखो सिस्टम, इसको अगर हम बहुत थॉरली चीजों को समझे तो किसी भी बिल को पास होने के लिए बहुत सारी रीडिंग से निकलना होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, है ना, क्लॉज बाय क्लॉज हर चीज होती है। उसके बाद वो वोटिंग होती है, फिर उसके बाद वो बिल उस हाउस में पास होता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। तभी तो आपने देखा कि हमारे यहाँ कई बिल जो है इतने टाइम, जैसे कि विमेन रिजर्वेशन वाला, 1/3 विमेन रिजर्वेशन वाला बिल, हमने कहा अभी भी लोकसभा के अंदर विमेन का जितना होना चाहिए कोटा, जैसे कि हमने कहा कि पंचायत वगैरह में 1/3 रिजर्वेशन है विमेन के लिए, लेकिन इतने डेकेड से वो अभी भी जो है पेंडिंग है, वो बिल अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि एक हाउस में वो बिल पास होता है तो दूसरे में नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि देयर कैन बी एनी ऑब्स्टिकल्स आर देयर, कैन बी इश्यूज कुड बी देयर, कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो बिल जो है पेंडिंग हो जाता है। लेकिन बेटर क्या चीज है कि सबसे अच्छी चीज ये कि जब बायकैमरल होता है, हम ये बात कर रहे हैं कि बायकैमरल रिक्वायरमेंट क्यों है इंडिया में, तो हम तीसरा एडवांटेज इसका समझ रहे हैं कि अगर बायकैमरल इंडिया में है तो उसमें ये चीज सबसे बेस्ट होती है कि एक हाउस में अगर कोई बिल जो है पास हो गया तो रिकंसिडरेशन दूसरे उसमें हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई मिस्टेक है, कहीं एरर है, तो यहीं पर जो है वो खत्म हो जाता है। तो इनका ये बेनिफिट्स है कि 2 हाउसेस इंडिया में है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन के हिसाब से, डाइवर्सिटी के हिसाब से ये रिक्वायर्ड है, इसलिए हमने बायकैमरल लेजिस्लेचर को अडॉप्ट किया है। अब हम इंडिया में ऐसे 7 स्टेट्स हैं या यूनिकैमरल है, तो हम इसको लर्न करने का एक तरीका बताती हूँ। मैंने जिस हिसाब से किया आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है ना, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए चाहे कैसे भी आए, है ना।
देखो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर आता है बिहार, पहले नॉर्थ के कर लो, फिर आता है यूपी। चलो अब साउथ के कर लें, आंध्र प्रदेश, इसी का एक स्टेट बना है तेलंगाना, फिर यहाँ महाराष्ट्र और यहाँ पर कर्नाटका। वेरी इजी टू लर्न। पहले हमने नॉर्थ के कर लिए स्टेट, फिर साउथ के कर लिए। जहाँ यूनिक एमरल है, जहाँ पर वन हाउस है, ये वो 7 स्टेट्स हैं जहाँ पर वन हाउस है, और उनके उस वन हाउस, जैसे कि हम इन्हीं के इनमें जो है मोस्टली सारा जो है वो यहीं पर वन हाउस के अंदर ही इनका जो है काम होता है। अब हम जो बात कर रहे हैं इंडिया के बाय कैमरल लेजिस्लेचर की, उसमें हम राज्यसभा और लोकसभा को बहुत थॉरली समझेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए कि राज्यसभा क्या है। इट इज अ, चलिए क्वेश्चन पूछ रही मैं, राज्यसभा इज द लोअर हाउस और अपर हाउस? प्लीज रेज योर हैंड। राज्यसभा इज द लोअर हाउस और अपर हाउस? यस मिस। यस मिस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इट इज द अपर हाउस और लोअर हाउस? मैम लोअर हाउस। लोअर हाउस। चलो पूछते हैं और किसी से। रिमझिम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। राज्यसभा इज द मैम इट इज अपर हाउस। It is upper house. This is correct. It is upper house, not lower house. ऐसा लगता है लोकसभा है तो हमें लगता है कि ये अपर हाउस होगा लोकसभा, नहीं, ये अपर हाउस नहीं है। इसका भी रीजन है। राज्यसभा इट इज अ अपर हाउस, लोकसभा इज अ लोअर। चलो अब कंफ्यूजन ही दूर कर देते हैं। लोकसभा एल से है, एल से लोअर हाउस। चलो रीजन तो हम बताएंगे, लेकिन आपको अगर याद नहीं रहे तो सबसे तरीका यही है। देखो सब्जेक्ट कोई भी हो, उसकी छोटी छोटी ट्रिक खुद बना लिया करो अगर चीजें याद नहीं रहती। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कैसे याद करना है इसको, क्योंकि ये भी मैंने भी खुद ने आज ही इसको प्रिपेयर किया कि इसको क्या करना है, तो ऐसे करते हैं। अब लोअर हाउस है तो एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस। चलो ये काम खत्म हुआ। अब बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा की। राज्यसभा क्या है मैंने अभी बताया, इट इज द अपर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इसमें क्या करनी है कि इट इज द परमानेंट हाउस, ठीक है। हम इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना वो समझते जाते हैं। राज्यसभा क्या है? इट इज द परमानेंट हाउस। इसके जो मेंबर्स होते हैं, चलिए एक एक स्टेप को मैं आपको बोर्ड पे समझाती जाती हूँ। बात करते हैं राज्यसभा। सबसे पहली चीज अपर हाउस, सेकेंड थिंग परमानेंट हाउस, थर्ड मेंबर्स की बात कर रहे हैं। मेंबर्स कौन होते हैं? देखो जो राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर की बात की गई है 250 अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 250 मेंबर्स का अभी जो हम बात कर रहे हैं 245 है, जिसमें से 243 क्या है, इनको कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करके लिया जाता है। और इसमें से यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स भी हैं, प्लस 12 मेंबर्स क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड होते हैं किसके थ्रू? प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। ये एक सुपरफिशियल आइडिया है इसका। अब बात करते हैं कि इन मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है। फिर घूम के वही बात आती है जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एमएलए जो है, यानी इसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा गया है। ये इलेक्टोरल कॉलेज किसको इलेक्ट करता है? राज्यसभा के मेंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर दो प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं, उन प्रिंसिपल्स को समझना है
अगर मैं इसको कंटिन्यूशन में बताऊंगी तो पूरा इंडिया का आ जाएगा, लेकिन दो प्रिंसिपल की मैं बात करना चाहूंगी आपसे। वो दो प्रिंसिपल्स क्या है? इन्होंने एग्जाम्पल एक यूएस का लिया है और एक इंडिया का लिया है। हमारे इंडिया में क्या सिस्टम है? चलिए पहले यूएस की बात कर लेते हैं। यूएस में क्या सिस्टम है? वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है किसका? पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। इस बात को पहले समझ लें। शायद इसका वर्ड सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोला है इन्होंने, जिसके अंदर क्या होता है? हाँ, सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है? देखिए, यूएस के जितने भी स्टेट्स होंगे, अब आपको मालूम है इक्वल पॉपुलेशन तो नहीं होगी ना, पॉपुलेशन तो अलग अलग होगी। तो पॉपुलेशन अलग होने के बाद भी जो सीट्स होंगी, यानी जितनी उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा सीनेट में, सीनेट क्या है? ये यूएस का अपर हाउस है, उसमें इक्वल होगा। ये तो एक प्रिंसिपल है। दोबारा समझ लो कि यूएस में क्या सिस्टम है? पॉपुलेशन, स्टेट की पॉपुलेशन कितनी भी हो, किसी की कम है किसी की ज्यादा है, वो मैटर नहीं कर रहा है। मैटर क्या कर रहा है कि वो जो सीट्स देंगे, है ना, जो सीट्स देंगे सीनेट में, वो सीट इक्वल होगी। मान लीजिए अगर एक स्टेट की, इसी को हम एग्जांपल से समझ लेंगे कि मान लीजिए एक स्टेट की 1 लाख है ना, 1 लाख है, और दूसरे स्टेट की 50,000 ही है, तो भी आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन क्या कह रहे हैं? इक्वल है, यानी दोनों को दो दो सीटें मिलेगी। फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान किसको होगा? इन 1 लाख पीपल को होगा, क्योंकि सबको जो है यहाँ पर जितना लोगों को सीट जितनी ज्यादा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन मिलनी चाहिए, यानी ज्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो नहीं मिला है। ये है सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके अपोजिट हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में क्या सिस्टम है? चलिए, इंडिया का सिस्टम है कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारे राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जितनी उस स्टेट की पॉपुलेशन है उस हिसाब से उसको सीट मिलेगी राज्यसभा में। एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे हमें सबको पता है यूपी, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सीटें भी क्या होगी? इसकी ज्यादा होगी, है ना। और सिक्किम, इसकी तरफ हम देखते हैं, सिक्किम यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, तो वहां पर सीटें क्या होगी? 1 और 2 सीट्स होगी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जहां पर हम यूपी की 35, 36 सीट की बात करते हैं, वहीं सिक्किम की 1 या 2 की सीट की बात करते हैं। उसका रीजन क्या है? इंडिया में क्या सिस्टम है? रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं मेंबर्स को इलेक्ट करने का, मेंबर्स के जो है डिफरेंट मेंबर्स को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट करने का, ये दो तरीका। मेरे हिसाब से इंडिया का बेस्ट तरीका है ये, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन है तो सब लोगों को उनको जो है रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला है, ठीक है, अपनी बात कहने का मौका मिला है। इससे डाइवर्सिटी का अकोमोडेशन भी हुआ है, प्लस जो इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, हर स्टेट जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेगा। तो इस चीज का ये बेनिफिट मिला है, ठीक है। अब हम दोबारा शिफ्ट होते हैं, एक जनरल जो इंफॉर्मेशन है राज्यसभा की, उसकी बात करते हैं। राज्यसभा मैंने आपको बताया परमानेंट हाउस। क्यों परमानेंट है, ये भी बात सुन लीजिए। इसका रीजन ये होता है कि इसके जो 1/3 मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो अपना टेन्योर पूरा करने के साथ ही रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। अपना उनका टेन्योर, वैसे इनका जो है परमानेंट है, लेकिन इनका टेन्योर 6 इयर्स होता है मेंबर्स का।
ये टेन्योर पूरा करने के बाद ये मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, तो दोबारा 1/3 मेंबर्स की सीट जो खाली होती है उस पर इलेक्शन होता है, इंटरनल इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। एक तरीका ये है। ये मेंबर्स री इलेक्ट भी हो सकते हैं, ये इसके अंदर एक फैसिलिटी है। तीसरी चीज और बताती हूँ उसमें कि मान लीजिए कोई मेंबर की डेथ हो गई है या उसने रिजाइन कर दिया है, तो जो उसकी जगह पे मेंबर आएगा, मान लीजिए जो फॉर्मर मेंबर है, एक्स्ट्रा आपको थोड़ी सी चीजें बता रही हूँ मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, आपका जो कंटेंट है उससे थोड़ा सा अलग। फॉर्मर मेंबर ने मान लीजिए 2 इयर्स तक जॉब करी और उसकी डेथ हो गई या उसने रिजाइन कर दिया, तो जो पर्सन इलेक्ट होकर आएगा, जो मेंबर, तो कितने टाइम के लिए वर्क करेगा? रिमेनिंग 4 इयर्स के लिए। क्लियर? तो ये तो रहा कि मेंबर्स को किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है, 1/3 मेंबर का क्या किया जाता है, इसीलिए ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, नया सत्र चालू हो जाता है, जैसे अभी राजस्थान का आपने देखा, विधानसभा का नया सेशन स्टार्ट हुआ, किसके भाषण से शुरू हुआ? राज्यपाल। तो यहाँ जो सिस्टम है राज्यसभा का, हमने ये देखा कि ये परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है इस चीज का, और बताते हैं। आपको मालूम है कि लोकसभा जो है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, लेकिन वो उससे पहले भी जो है डिसॉल्व हो सकती है, कुछ भी मेनी रीजन है ना, हो सकते हैं। लेकिन हमने कहा राज्यसभा क्या है, डिसॉल्व नहीं होती, एक परमानेंट हाउस है। तो उस ऐसी कंडीशन में कभी ऐसा हमारे देश के सामने इन एनी सिचुएशन इज देयर सम इश्यूज दैट राइजेस, हमारी कंट्री में हो जाते हैं, कोई अटैक हो जाता है या कुछ भी ऐसा, तो ठीक है, एक इमरजेंसी वाला सिस्टम है जहाँ प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाता है। लेकिन कोई ऐसा इश्यूज होते हैं, उन पे राज्यसभा के अंदर जो है वो डिस्कशन कंटिन्यू चलता है वहां पर। ठीक है, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जो इश्यूज होते हैं उनका डिस्कशन होता है, प्लस जो है उसके ऊपर डिसीजन भी लिया जाता है। और डिसीजन लेने के बाद अगर जब लोकसभा दोबारा से रिज्यूम होती है, तब वो वहां पर सेंड किया जाता है। इसी दौरान एक प्रेसिडेंट को पावर है जिसमें ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पास करता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि मान लीजिए कि लोकसभा सेशन में नहीं, आपको मालूम है कि पार्लियामेंट की सहमति के बिना कोई भी लॉ जो है वो आगे प्रोसेस में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास क्या अधिकार है? ऑर्डिनेंस का है कि कोई ऐसा नेशनल इश्यूज आ गया कि वहां पर लॉ बनाना जरूरी है, तो प्रेसिडेंट उस समय उस ऑर्डिनेंस को पास कर देता है, लॉ बना देता है। लेकिन क्या कंडीशन है? उसका एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, 30 days और some months are also mentioned there कि पास होना कराना पार्लियामेंट से जरूरी है। तो हमें ओवरऑल चीजें समझ में आई कि पार्लियामेंट क्यों जरूरी है और वो किस किस उसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर राज्यसभा की हमने एक जनरल इंफॉर्मेशन जो थी वो हमने डिस्कस करी। राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर्स है जो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा, it is a lower house and it is not a permanent नहीं है। इसको क्या कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जितने भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। किनसे? लोगों से। टेन्योर क्या है? 5 years। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल के थ्रू। आपको पता है ये सिस्टम क्या है? राइट टू वोट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि जहां पर 18 years ऑफ एज है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑल हैव द राइट टू वोट। लोकसभा जो है यहाँ पर सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ओपोनेंट पार्टी होती है एंड अदर मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, लोकसभा की जो यूं कहा जाए कि कोई मीटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर।
और हेड ऑफ द पार्टी लोकसभा का कौन है अभी, जो हमारी मेजोरिटी पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो लोकसभा जो है ये अपने आप में यूं देखा जाए तो काफी पावरफुल है। उसका रीजन क्या है, एक रीजन बताती हूँ। जहां पर जो भी बिल आता है लोकसभा में, वहां हम बात करते हैं कि जो बिल आता है इट इज अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिनिस्टर डिसीजन। मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो 360 आर्टिकल के थ्रू वहां पर सब कुछ चेंजेस था, हमारे इंडिया से अलग सब कुछ था, तो वहां ये सारा डिसीजन कैसे आया? इसका डिसीजन लाने में सबसे पहला जो रोल है वो वहां के उस पोर्टफोलियो से रिलेटेड कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि उन्होंने उससे रिलेटेड जो है डिसीजन लिए। प्राइम और एक बात बता दूं, अकेले डिसीजन नहीं होता, उसमें प्रधानमंत्री जो है वो आखिरी जो डिसीजन है वही देते हैं कि ये चीज करनी चाहिए या नहीं, पूरा डिस्कशन डिबेट होता है। प्लस द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मुझे बताइए कि जो बजट बनता है वो बजट क्या केवल मिनिस्टर्स बनाते हैं? जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका तो रोल है कि वो बजट पेश करता है, वो पूरी रीडिंग्स होती है, वो सब कुछ होता है, लेकिन इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है? ब्यूरोक्रेट्स का रोल इंपॉर्टेंट है। हु आर कॉल्ड द ब्यूरोक्रेट्स? ब्यूरोक्रेट्स आर द परमानेंट सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो कि मैंने अर्लियर अपने चैप्टर में क्लियर किया था कि ब्यूरोक्रेट्स जो है दीज आर परमानेंट, दीज आर एक्सपीरियंस, दीज आर रिक्रूटेड थ्रू द एग्जाम, ट्रेनिंग होती है उनकी। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है उनको अंडर सुपरविजन ब्यूरोक्रेट से काम कर। तो कब कौन सा बिल पास होना है, उसका टाइमिंग क्या है, उसका कंटेंट क्या है, सब्सटेंसेस क्या है, इट इज डिसाइडेड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर। और उसके बाद जो है वो बिल लाया जाता है, फिर वही सिस्टम होता है लोकसभा देन राज्यसभा। राज्यसभा लोकसभा इन आपस में जो है जब तक मेजोरिटी से वो बिल पास नहीं होता तब तक प्रेसिडेंट जो है उस पर साइन नहीं करता। हमने प्रेसिडेंट की भी पावर को पढ़ा था कि प्रेसिडेंट बिल को जो है वो कितने टाइम तक पेंडिंग रख सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए कैसे दे सकता है, वो सारा हमने डिस्कस। तो लोकसभा जो है ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज टू टेक द डिसीजन और मेजर रोल ऑफ द बिल। One more important thing is that कि लोकसभा how it is powerful, more powerful, I should say this, कि ये लेटर हम डिस्कस जरूर करेंगे इस टॉपिक को, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि जो बजट है यानी जिसको हम कहते हैं मनी बिल, मनी बिल क्या है? मनी बिल इट इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, नेवर इन राज्यसभा, and only the power Rajya Sabha that the money bill it is sent to the Rajya Sabha. The Rajya Sabha can keep it only for 14 days for reconsideration. अगर वो इन 14 days में भी अगर उसको लौटाता नहीं है मनी बिल को तो वो ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने लोकसभा की पावर को समझा। हालांकि एक अलग टॉपिक है आपका कि दोनों की पावर्स को हम कंपैरिजन करेंगे। कुछ स्पेशल पावर्स जो है राज्यसभा के पास है लोकसभा, जैसे कि ये आपके एग्जाम्स वगैरह यूपीएससी के एग्जाम वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड ये राज्यसभा जो है वो डिसाइड करती है। तो लेटर वी विल डिस्कस की डिफरेंट पावर्स क्या है। तो लोकसभा ओवरऑल हमने देखा कि किस तरह से है। अब लोकसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स और जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं जिनके पास पोर्टफोलियो, इनका यूं कहा जाए कि टोटली ये लोकसभा के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर जब तक इनकी मेजोरिटी रहती है, जब तक इनका विश्वास बना रहता है तब तक सरकार चलती रहती है और वो लोकसभा कंटिन्यूशन में रहती है। जैसे ही अगर बिकॉज ऑफ एनी रीजन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, बहुत सारे मोशंस की भी हम बात करेंगे, उसमें अगर वो पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है और गिरने के साथ ही क्या होता है, वो लोकसभा भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। फिर न्यू इलेक्शन होंगे, न्यू अपॉइंटमेंट इलेक्शन होंगे, न्यू अपॉइंटमेंट्स होंगे प्राइम मिनिस्टर्स के, मिनिस्टर्स के, तब वो दोबारा से रिज्यूम होती। तो ये एक लोकसभा का सिस्टम था। अब जो हम मेन बात करने जा रहे हैं इसके बाद वो है फंक्शंस किसके? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अगर हम फंक्शंस देखें तो इनन्यूमरेबल फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करेंगे जो कि
हमारे अकॉर्डिंग टू जो कंटेंट है उसमें और कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको जरूर बताऊँ। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव है, फाइनेंशियल है, रिप्रेजेंटेशन है, अमेंडमेंट है, जस्टिस रिलेटेड है और भी बहुत सारे फंक्शंस है जिसका हम वन बाय वन बहुत अच्छे से इसको जो है थॉरली डिस्कस करेंगे कि क्या है। एक्चुअली टाइम इज गोइंग टू बी ओवर नाउ, आई हैव टू स्टॉप राइट नाउ। कल हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। यस नरेश, यू वांट टू आस्क समथिंग? रिमझिम, यस रिमझिम। मैम मुझे फर्स्ट लेसन के रिगार्डिंग कुछ पूछना था। फर्स्ट लेसन यस मैम। जो आज टेस्ट है। यस मैम। हाँ पूछो। मैम जैसे ना ब्रिटिश रूल के अंदर जो ना सीट्स इलेक्ट हुई थी ना, अकॉर्डिंग टू बुक उसमें ना 290 सीट्स है, पर अगर नेट पे सर्च करो तो 296 है। मैम विच वन इज करेक्ट? 290 या 296? सम हाँ कंफ्यूजन 292। हाँ देखो मेरी बात, 290 और 296 ये दे रखा है ना? नहीं 292 और 296 है ना, तो एक्चुअली 292 सही है, 292। अच्छा, और मैम उसमें ना कांग्रेस की सीट्स कहीं पे 208 आ रहा है और कहीं पे 212 आ रहा है, तो कौन सा Actually, सही है? अब मेरी बात सुनो, अप्रॉक्स क्या होता है कि करेक्ट आपको चीज ना मिलनी थोड़ी सी इनमें जहाँ पर डेटाज वाला होता है ना वहां थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो अभी जो अकॉर्डिंग टू आपकी जो एनसीईआरटी दे रखा है आप सिर्फ वही आंसर मार्क करें, ठीक है। नेट जो है वो अलग भी ओके दिखा सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हर बार सही हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ओके। स्टूडेंट्स। अब आपका टेस्ट होगा 1:30 पे। आई थिंक यू ऑल प्रिपेयर्ड वेरी वेल and questions are very easy, you everybody can easily attempt all. Okay, all the very best now.